Hello students, welcome to Political Science class. Today we are going to start chapter 2 from your second book, that is Freedom. Freedom means liberty, independence. We want that nobody should interfere in our life. In human history also, there are many examples of people and communities which have been exploited, enslaved or dominated by more powerful groups. This is a normal phenomena seen in every society that powerful one tends to dominate the weaker one. जो पावरफुल होता है वो वीकर वन को दबाने की कोशिश करता ही है, लेकिन वो वीकर वन भी बहुत लॉन्ग पीरियड तक अंडर डोमिनेशन नहीं रह सकता. एक ना एक दिन वो उस डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ ज़रूर उठाता है. सो एट द सेम टाइम वी हैव इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट सच डोमिनेशन. So what is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? लोग अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं in order to gain independence. So we can say that there is a strong desire among human beings to control own life and destiny. हर कोई अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेना चाहता है. They want to control their own future. Not only individuals but societies also value freedom to protect their culture. We can take the example of Indian society which fought against the British domination in order to protect their culture. So freedom is very much important phenomena for every individual and every society. The ideal of freedom. When we talk of ideal of freedom, the two great personalities that were Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi from Myanmar, their struggle to independence of their country can be commemorated as the ideal of freedom. The autobiography of the Nelson Mandela, that is Long Walk to Freedom, in which he wrote about the struggle against the unjust constraints or the hurdles in the way of life of black people in the apartheid regime of the South Africa. And same in the case of Aung San Suu Kyi, she wrote in her book, that is Freedom from Fear, that unless the individual got freedom from fear, he or she cannot lead a dignified human life. Now what is freedom? Freedom means absence of constraints and able to make independent decisions. Means कि कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट ना हो और हम अपने लाइफ डिसीजंस खुद ले सकें, कोई भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे. और इन अदर वर्ड्स, existence of conditions in which people can develop their potential or talent. Means condition of free society, वो free society जो हमारे life decisions में interfere भी ना करे और हमें हमारा potential और talent develop करने में helpful हो. So we can say that freedom has two dimensions. First, absence of constraints, and second, able to make independent decisions. So it is concluded that a free society would be one which enables all its members to develop their potential with minimum of social constraint. अब आपने देखा कि इस डेफिनेशन में वर्ड फ्री सोसाइटी भी यूज़ हुआ है और मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट भी यूज़ हुआ है. इसका मतलब कि कोई भी फ्री सोसाइटी जो है वो एब्सोल्यूट फ्री नहीं हो सकती. वहाँ पर कम से कम, बहुत ही कम, लेकिन सोशल कंस्ट्रेंट्स होंगे ज़रूर. एक वो फ्री सोसाइटी जो हर मेंबर को अपना पोटेंशियल डेवलप करने का मौका दे, लेकिन उसमें कम से कम सोशल कंस्ट्रेंट हो. इसका मतलब हर सोसाइटी में कंस्ट्रेंट होते हैं, फ्री सोसाइटी में बहुत कम होते हैं, और जो फ्री सोसाइटी ना हो, डोमिनेटिंग सोसाइटी हो, वहाँ पर कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमिन जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट, कि अगर एक फ्री सोसाइटी में मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट होते हैं तो जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट कौन से हैं, कौन कौन सी रुकावटें या कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. नाउ फॉर दैट वी मस्ट लुक एट द कोर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. उसके लिए हमें सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच का क्या रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. Now to understand the relationship between individual and society, every individual is connected to different societies. At first level, individual is connected to family. Family में अलग तरीके के constraints होंगे. If one individual is connected to
any other society, like you are a student, you are connected to a school. नाउ स्कूल और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप के बेसिस पे कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट होंगे. व्हेन इंडिविजुअल इज कनेक्टेड टू हिज ऑफिस और एट वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस पे कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शंस अलग तरीके की होंगी. सो द कंस्ट्रेंट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. हर इंडिविजुअल जो है वो बहुत सारी सोसाइटी से कनेक्टेड होता है और जिस तरह का रिलेशनशिप होता है उसी हिसाब से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं. नाउ द सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स. ये कंस्ट्रेंट्स आते कहाँ से हैं? व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ कंस्ट्रेंट? सो कंस्ट्रेंट कम्स फ्रॉम डोमिनेशन. डोमिनेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर एक ग्रुप पावरफुल होता है और दूसरा ग्रुप वीक होता है और दे आर एबल टू डोमिनेट द वीकर वन with the help of force. And second constraint comes from external control. In this we can take the example of government. Government rule or government control the people through laws. तो laws भी हमारे लिए एक तरह से क्या है? Restrictions हैं. And sometimes the sources of constraint come from the social system like social inequalities. Here we can take the example of caste system in our country. And we can take the example of economic inequality, the difference between the rich and poor people. जब दो तरह के ग्रुप्स में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है और जिसमें एक सुपीरियर और दूसरा ग्रुप इन्फीरियर हो, तो वहाँ पर भी सुपीरियर ग्रुप जो है वो इन्फीरियर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है. सो द सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट कम फ्रॉम द डोमिनेशन, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड द सोशल इनइक्वालिटीज. नाउ व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स? अभी आपने पढ़ा कि एक फ्री सोसाइटी में भी मिनिमम कंस्ट्रेंट्स होते हैं. इसका मतलब कि हमें कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत है. वी नीड कंस्ट्रेंट टू रन एनी सोसाइटी स्मूथली. सो वी नीड कंस्ट्रेंट सो दैट नो सोसाइटी वुड डिसेंड इनटू क्योस. अब किसी भी सोसाइटी में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं. अब हर कोई अपना व्यू पॉइंट दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश ना करे, तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ chaos और मिसमैनेजमेंट. देन डिफरेंसेस, डिसएग्रीमेंट मे डेवलप कन्फ्लिक्ट. अब जितने ज़्यादा ह्यूमन बींग्स होंगे उतने ही व्यूज़ होंगे, उतने ही डिफरेंसेस होंगे. सो देयर मे बी अ डिसएग्रीमेंट एंड मे डेवलप द कन्फ्लिक्ट. सो कन्फ्लिक्ट शुड नॉट डेवलप. There must be constraint in the society. Then some mechanism to control the violence. अगर conflict होगा तो violence भी हो सकता है. उस violence को control करने के लिए भी कोई system, कोई mechanism होना चाहिए. Some constraint should be there in society so that there should not be any kind of violence. Then respect each other's view to live happily. In order to live happily, we must respect the views of everyone. Because every human being wants that his views must be recognized. So there should be a respect of everyone's views. Then legal and political restraint to ensure that differences may be discussed and debated without one group coercively imposing its view on the other. अब कुछ लीगल और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, कुछ मेजर्स होने चाहिए ताकि हर ग्रुप को ये लगे कि उनके डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो डिस्कस भी होंगे, डिबेट भी होंगे और कोई भी चीटिंग करके अपने व्यूज़ जो है वो दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करेगा. सो देयर शुड बी कंस्ट्रेंट इन दी सोसाइटीज़. नाउ फ्रॉम द अबव पॉइंट्स वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ कंस्ट्रेंट इन एवरी फ्री सोसाइटी. बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ नाउ टू आइडेंटिफाई विच कंस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम आर नेसेसरी. कि हमारी फ्रीडम के ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो होनी चाहिए, कौन से कंस्ट्रेंट्स लगने चाहिए. नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज कंस्ट्रेंट. सो दिस वी विल आइडेंटिफाई इन दी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टडी एट होम एंड बी सेफ.